हम अपने दर्शकों को सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। Stop all military activities at sea, on the air and on the land, and the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. Is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side, and as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi. नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। So several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17, it was a false information. Also that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which was completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques,
let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan all has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. Addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. So. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this briefing. Thank you very much. चलिए तो ये मिनिस्ट्री की तरफ से तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ताजा जानकारी के साथ सामने रखा गया। सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए भारतीय सैन्य अधिकारियों ने यह बताया कि पाकिस्तान अब तक सिर्फ झूठ और अफवाह ही फैलाता रहा है। पाकिस्तान ने भारतीयों के जवाबी कार्रवाई में मस्जिदों के नुकसान की झूठी खबर फैलाई, अफवाह फैलाई, जिसका खंडन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। भारतीय सैन्य टुकड़ियों को नुकसान पहुंचाने की, सेना के उपकरणों को नुकसान पहुंचाने की, रक्षा उपकरणों को नुकसान पहुंचाने की जितनी भी जानकारी साझा की गई सभी झूठे और अफवाह थे। इसका खुलासा भारतीय सेना के अधिकारियों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और यह भी बताया कि हमारी ओर से हुई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। चलिए सहयोगी राजीव के पास एक बार फिर से चलते हैं। राजीव, जो बताया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे एक अंदाजा लग सकता है कि आखिर पाकिस्तान सीज फायर के लिए क्यों इतना उतावला हो गया, क्यों पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अपने समकक्ष भारतीय अधिकारी को फोन करके जवाबी कार्रवाई रोकने की मांग की, गुहार लगाई है भारत से, और वो जवाब है कि भारत ने जवाबी कार्रवाई में बड़ा नुकसान दिया है पाकिस्तान को। देखिए दीपक, शुरू से आप देख लीजिए, भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे हमला किया, उनका तर्क था और भारत ने ये माकूल जवाब इसलिए भी दिया आतंकवादियों पर कि जो 22 अप्रैल की घटना हुई थी, जो कि एक सिविलियन 26 सिविलियन को मारा गया था, ये बहुत बड़ी बात थी और इसका उन्होंने बदला लेने की बात कही थी और ये बात कही थी। वहाँ पाकिस्तान लाइन कहीं नहीं आया, पाकिस्तान की बात कहीं नहीं आई, आतंकवादियों की बात आई और आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने हिमाकत की, गलत तरीका अपनाया, सिविलियन पर हमला शुरू कर दिया, सीज फायर का उल्लंघन किया, बहुत सारी चीज़ें की। पाकिस्तान से सारी चीज़ें हो रही थी, हिंदुस्तान तो उसको जवाब दे रहा था, पाकिस्तान ने शुरुआत किया था। और भारत जिस तरह से
अपने शर्तों पर यह जो युद्ध विराम किए कराया है ये मायने रखता है। पाकिस्तान ने नहीं हिमाकत की थी, शुरुआत की थी। हमने तो आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था, न कि उनके किसी सिविलियन पर हमला किया था, न कि उनके किसी मस्जिद पे हमला किया था। ये सारे प्रोपगंडा पाकिस्तान के तरफ से फैलाए जा रहे थे और उसी का ये अभी रक्षा मंत्रालय में कुरैशी ने जिस तरह से स्पष्ट बातें की कि किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा था, झूठे बातें कही जा रही थी, वो सारी बातें झूठ है। और यह भी कहा, स्पष्ट किया कि हमने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसी का नतीजा है कि 3:35 में पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन हिंदुस्तान के डीजीएमओ को आता है और युद्ध विराम की बात करता है। और जब भारत के डीजीएमओ ने शर्त रखी तो उसको मानने के लिए मजबूर हुआ पाकिस्तान। तो ये शर्त है और ये बात है, और ये जो भ्रम और झूठे फैलाए गए थे उसका पटाक्षेप रक्षा मंत्रालय के पीसी में सामने आ गया। रह गई बात कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात आई कि उन्होंने ट्वीट करके ये सारी जानकारी दे दी पहले। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो हाँ, उनको लेकर के पाकिस्तान उनके पास गया था बात करवाने की। हर जगह गुहार लगाया है पाकिस्तान ने, किससे नहीं गुहार लगाया है, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है और अभी भी स्पष्ट कर रहा है। जिस तरह से विदेश मंत्री का अभी ट्वीट आपने पढ़ा, उन्होंने कहा कि हमारी अभी भी लड़ाई जारी है, लेकिन किसके खिलाफ? आतंकवादियों के खिलाफ, और वो लड़ाई जारी रहेगी। तो ये कहां से, ये क्या संदेश देता है कि हाँ सीज फायर तो हो गया लेकिन हमारी लड़ाई आतंकवादियों से रहेगी। अगर इस तरह की हिमाकत आतंकवादियों के पीठ पर सिर हाथ रख करके पाकिस्तान करवाता है तो पाकिस्तान को भी फिर से जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। तो दीपक, कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों के बल आ गया था। इसका नतीजा सीज फायर है। भारत ने अपनी शर्तों पर यह सीज फायर किया है और जो शर्त दिए हैं उसको पाकिस्तान ने माना है और भारत ने स्पष्ट भी कर दिया है कि हम किन किन बिंदुओं को लेकर के बातें की थी और हमारे खिलाफ जो प्रोपगंडा पाकिस्तान फैला रहा था वो सारी चीजें झूठ है। हमने कहीं से भी मस्जिद पर हमला नहीं किया है। आप सोचिए कि ये बात बोलना कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश हैं और किसी मस्जिद पर हमला नहीं किए हैं, तो ये प्रोपगंडा नहीं हुआ तो और क्या हुआ पाकिस्तान की तरफ से? मस्जिद कहां से आ गया भाई? ये जब मदरसा और जहां आतंकवादी गतिविधि और प्रशिक्षण चल रहा है और वो मस्जिद के आड़ में चल रहा हो या फिर मदरसा के आड़ में चल रहा हो, अगर उस पर हमला होगा तो आप धार्मिक उसको बना देंगे। तो ये भारत ने स्पष्ट किया है। अब सीज फायर हुआ है, हालांकि पाकिस्तान अब घुटनों के बल आ गया है, उसको भी पता चल चुका है और उसको जितना नुकसान पहुंचना था उससे ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है। लेकिन आप सोचिए, यहाँ मीडिया स्वतंत्र है और मीडिया हर चीज वो चीज दिखाती है कि जो कि उसके आंख के सामने होता है, उसके कैमरे के सामने होता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी स्थिति नहीं है, वहां चाइना में वैसी स्थिति नहीं है कि मीडिया को इस तरह का फुल फ्लेजेड स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो कुछ भी दिखा ले। लेकिन अगर यहाँ नुकसान हुआ रहता भारत में तो फिर मीडिया भी चुप नहीं रहती, भारत की मीडिया। लेकिन आप देख लीजिए, मीडिया उठा करके, कोई भी मीडिया उठाइए, वहां दिखाया जा रहा है कि उसके जितने भी मिसाइल हमले हुए हैं, जितने भी उन्होंने हिमाकत की है ड्रोन से, वो सारे ध्वस्त किया है यहाँ के सुरक्षा प्रणाली ने और उसका मलबा दिखाई दे रहा है, उससे हानि नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, बॉर्डर पे जो आमने सामने की गोली चली थी उसमें कुछ सिविलियन मरे थे, वो शुरू के दिन में मरे थे। उसके बाद उन लोगों को वहां से बॉर्डर से शिफ्ट कर दिया गया सुरक्षित स्थानों पे, तो वहां से भी कोई मरने की खबर नहीं आई। हमारे एक जवान की बात कर लीजिए, कोई जवान की बात आई है कि हमारे जवान कोई मारा गया है? लेकिन उनके तरफ से ये बात तो स्पष्ट नहीं हो पाई, हालांकि ये पुष्टि भी नहीं हो पाई। लेकिन 2 फाइटर विमान के चालक को भारत ने अपने कब्जे में ले रखा है और वो बात अभी सामने नहीं आई, लेकिन ये सच्चाई है। चूंकि वहां के लोकल बॉडीज यानी कि वहां के जो स्थानीय लोग, उन्होंने कहा कि हाँ, जैसलमेर में जिस तरह से फाइटर विमान का जो पायलट था वो जब गिरफ्तार हुआ तो वहां के पब्लिक ने देखा तो उन्होंने वो बात रखी। हालांकि ये डिप्लोमेटिक बात है और बहुत सारी चीजें सामने नहीं आती हैं, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि भारत की तरफ नुकसान की स्थिति नहीं है। नुकसान की स्थिति दिखाई दे रही है पाकिस्तान की तरफ, जिस तरह से लाशों को सैल्यूट दिया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा, सेना के अधिकारी। बिल्कुल राजीव, धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए।
पाक की रक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया गया। पाक को जवाबी कार्रवाई में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा और इसके बाद संभवतः पाक को यह एहसास हुआ कि ये बदला हुआ भारत है और ये मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। ये हिचकेगा नहीं। भारतीय सीमा के अतिक्रमण पर, भारतीय संप्रभुता के अतिक्रमण पर उचित जवाबी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी दूसरा विदेश शक्तियां इसमें हस्तक्षेप करने की हिमाकत नहीं करेगा।